Hello student, today I am teaching you business studies for class 11 and this is your chapter small business and enterprises. In this chapter I already covered few topics like entrepreneurship development, characteristics and needs for entrepreneurship. Now in this video I'll explain you about Startup India scheme. So this Startup India scheme, it is a flagship initiative of the government of India which aims to prepare a strong ecosystem for nourishing innovations and startup in the country. ठीक है, ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ये एक ऐसी पहल है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं उनको डेवलप करना, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, ठीक है, ताकि दे नॉट ओनली डेवलप themselves economically but they also help to boom up the Indian economy also. So this drive will lead towards sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities. और जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसके तहत लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का मेन टास्क है और इकोनॉमिक ग्रोथ करने का मोटो है. The Indian government aims to empower startups to grow through innovations and design. A startup is a newly emerged venture that aims to develop a viable to meet a marketplace need or problem. तो जो स्टार्टअप स्कीम है ये एक न्यूली इमर्ज्ड वेंचर है जिससे कि हम उन छोटे बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम करते हैं. ओके, सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम आर, इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं? टू इनिशिएट एन एंटरप्रेन्योर कल्चर एंड इंक्लूड एंटरप्रेन्योर वैल्यूज इन द सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ पीपल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. तो जो एंटरप्रेन्योर कल्चर है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल बंदा फर्स्ट ऑफ ऑल ही थिंक अबाउट एनी नीड और प्रॉब्लम, फिर उसको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ता है. तो ये जो सोच है इसको डेवलप किया जाएगा थ्रू स्टार्टअप इंडिया स्कीम. ओके, और सोसाइटी का जो सोच है टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योर्स उसको चेंज किया जाएगा. To create awareness about the charms of being an entrepreneur and the process of entrepreneurship, especially among the youth. तो जो यंग जनरेशन है उनको अवेयर किया जाता है कि हाउ दे टेक द बेनिफिट इफ दे आर द एंटरप्रेन्योर. ओके, सो टू encourage more dynamic startups by motivating, educated youth, scientists and technologists to consider entrepreneurship as a lucrative, preferred and viable career. तो उन जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, through the startup scheme government is motivating them, okay, so that they can choose their career as a entrepreneur. Next, to support the early phase of entrepreneurship development including the pre-startup as well as early post-startup phase and growth enterprises. तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट थ्रू द स्टार्टअप इंडिया स्कीम प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योरशिप फॉर देयर डेवलपमेंट from the both sided, from pre-startup as well as early post-startup phase for their growth. Okay, मतलब फर्म के स्टार्ट होने से पहले या फर्म अगर बंद हो चुकी है तो उस कंडीशन में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है सो दैट दे ग्रो अगेन, दे स्टार्ट अगेन. To both base the entrepreneurial supply by meeting specific needs of underrepresented target groups like women, social, economically backward communities, scheduled caste, scheduled tribes, underrepresented regions, etc. तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत स्पेशली फोकस किया जाता है फ्यू टारगेट ग्रुप्स के ऊपर लाइक विमेन, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स,
ठीक है, because these categorized people have not such a strong financial history or record. So to achieve inclusiveness and sustainable development, to address the needs of the population at the bottom of the pyramid, okay, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को फुलफिल किया जाए, सो दैट दे कम फ्रॉम द बॉटम अप टू द पिरामिड्स, ओके. नाउ व्हाट डज अ स्टार्टअप मीन्स? एक्चुअल में स्टार्टअप का मतलब क्या है? सो एज पर द मॉडिफिकेशन डेटेड 17th February 2017 issued by a Ministry of Commerce and Industry, a startup means. तो जो स्टार्टअप है वो 17 Feb 2017 से स्टार्ट हुआ है. इसको इशू करने वाले मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. स्टार्टअप मीन्स है क्या? एन एंटायर इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया. स्टार्टअप स्कीम के अंदर वो सारी फर्म आएंगी जो इनकॉर्पोरेटेड है और रजिस्टर्ड है, लीगल हैं अपने आप में, नॉट ओल्डर देन 5 years. वो 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ओके. नेक्स्ट, एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग ईयर. और पुराने जितने भी ईयर्स में वो चला है, उन ईयर्स में उनका जो एनुअल सेल है, टर्नओवर है, वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशंस, डेवलपमेंट और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विस, प्रोसेसेस ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पेटेंट. तो ऐसे जो स्मॉल फर्म्स हैं जो स्टार्टअप हो रही हैं, उनको इनोवेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कॉमर्शलाइज करने के लिए उनके प्रोडक्ट को, उनके सर्विस को डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी के तहत उनको हेल्प किया जाता है. उनको उनका जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट प्रोवाइड किया जाता है. सो दिस इज द स्टार्टअप मीन्स, ओके. नाउ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक्शन प्लान. अब ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, इसका ये कैसे काम करता है? दिस इज व्हाट स्टेप दैट पर्टिकुलर schemes did, ठीक है. So first, simplification and hand holding. It is the simplest process we can say, which hand hold of, if you are going weak in financial condition, your financial condition is going on very worse, and any advice you need, okay, you are not able to set your business in a marketplace. So such types of problem, transportation, communication, advertisement, so all these problems, if any entrepreneur faced that condition, Startup India schemes provide prerequisites to them so that they grow and they sustain in the market. So first, action plan के अंदर, action point के अंदर सबसे पहले point आता है simplification and hand holding. So in order to make compliance for startup friendly and flexible, simplifications are announced, ठीक है. तो उनके साथ फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल ईजी वे में उनको काम को समझाया जाता है या उनकी प्रॉब्लम को सुना जाता है, ठीक है. हैंड होल्डिंग मीन्स प्रोवाइडिंग समवन विद गाइडेंस, असिस्टेंस, एनकरेजमेंट और एड सपोर्टेड टू लेसन एंजाइटी, ओके. नाउ सेकेंड, स्टार्टअप इंडिया हब. So this is also the second very important point which Startup India initiative has taken action towards the marginalized groups of people, okay, like SC, ST, women, backward areas people or hilly areas people, okay. So Startup India Hub, the objective is to create a single point of contact for the entire startup ecosystem and enable knowledge exchange and access to funding, ठीक है. तो इसके तहत उनको सिंगल, उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है, उनके इकोसिस्टम को देखा जाता है, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, हाउ दे एक्सचेंज देयर गुड्स और कैसे अपने वो फंड को रेज कर सकते हैं.
थर्ड, लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन। तो कोई भी वो गुड्स को बना रहे हैं, उस गुड्स को बहुत जल्दी एग्जामिन करने के बाद उनको पेटेंट राइट प्रोवाइड कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाता, ठीक है। ट्रेडमार्क उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सो द स्कीम फॉर स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस इज envisaged to facilitate protection of patents, trademarks and designs of innovative and interested startups. ठीक है. Then fourth, easy exit. In the event of business failure and wind up of operations, procedures are being adopted to reallocate capital and resource towards the more productive avenues. तो ये जो ऐसी फर्म्स होती हैं, जो छोटी फर्म्स होती हैं, अगर वो उनके बिजनेस फेल हो रहे हैं, वाइंड अप हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको हेल्प किया जाता है, उनके लिए कैपिटल रीएलोकेट किया जाता है, रिसोर्स उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो दोबारा से प्रोडक्टिव एवेन्यू कर सके. सो दिस विल प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशंस विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ विदाउट फेयरिंग कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग ड्रॉन एग्जिस्ट प्रोसेस. ठीक है, तो कोशिश किया जाता है कि वो अब जो भी उनके आइडिया हैं, न्यू आइडिया, उनको हेल्प किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने में प्रमोट किया जाता है उनको. ठीक है. नेक्स्ट, हारिशिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर स्टार्टअप. सो टू इंश्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड funded incubators, the government envisages setting up incubator across the country in public private partnership mode. ठीक है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या ऐसी प्राइवेट कंसर्न जो कि ड्यू टू ऑफ इकोनॉमिकल वीकनेस, ड्यू टू ऑफ लेक ऑफ मार्केट नॉलेज, गोइंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, तो ऐसी जो प्राइवेट कंसर्न होती हैं उनको पब्लिक कंसर्न, पब्लिक सेक्टर अपने साथ मिला करके उनको आगे बढ़ने का मौका देती है. ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? पीपीपी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. लास्ट, टैक्स एग्जेम्पशंस. सो द प्रॉफिट ऑफ स्टार्टअप इनिशिएटिव्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो जो स्टार्टअप स्कीम्स के तहत फर्म डेवलप हुई हैं, ऐसी फर्म्स को 3 years तक टैक्स एग्जेम्पशंस का मौका मिलता है. ठीक है, सो ऑल दी 6 points आर यू मस्ट राइट इन स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक्शन पॉइंट. तो ये सारे गवर्नमेंट के एक्शन पॉइंट हैं. नाउ वेज टू फंड स्टार्टअप. अब किस तरीके से गवर्नमेंट ऐसी छोटी फर्म्स को फंड प्रोवाइड करता है. सो इन एडिशन टू गवर्नमेंट प्लान के साथ साथ दैट ऑफर कैपिटल एंड बैंक लोन्स टू स्टार्टअप्स, द फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स कैन ऑल्सो बी अवेल्ड इन द फॉलोइंग वेज. तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी हेल्प से उन ऐसी छोटी फर्म्स को फंड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है बूट स्ट्रैपिंग. सो बूट स्ट्रैपिंग इन बिजनेस मीन्स स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और कैपिटल. एक्सटर्नली इनके फंड को रेज नहीं किया जाता है, एक्सटर्नली ये कहीं से लोन नहीं लेते. इट इज़ कॉमनली नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग, जिसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन बिकॉज दे यूजिंग पर्सनल सेविंग्स एंड रिसोर्स. एंटरप्रेन्योर इज टाइड टू हिज बिजनेस. तो बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है कि जो उनकी खुद के पास सेविंग है, उस सेविंग को या पर्सनल सेविंग को वो यूज़ करते हैं. Moreover, investor considered it as a merit as a later stage. इसका जो फ़ायदा होता है वो आने वाले कुछ समय के बाद उनको मिलता है. However, it is a good option of funding only if the initial requirement is small and handy. तो इसका ये भी फ़ायदा हो जाता है कि इनिशियल स्टेज में जो फर्म अभी अभी स्टार्ट हुई है, मे बी ही गेट द प्रॉफिट और नॉट. सो इन दैट कंडीशन इनिशियल रिक्वायरमेंट छोटी है और हैंडी है, ये उनके लिए भी इजी ऑप्शन रहता है. सो इट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग. नेक्स्ट, क्राउड फंडिंग. सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फंडिंग अ प्रोजेक्ट बाय रेजिंग मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल. अब क्राउड फंडिंग का मतलब है कि इसमें फंड को रेज किया जाता है थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल से मनी को रेज किया जाता है. Organization reach out to common people for funding.
The emergence of platform that promote crowdfunding is fairly recent in India. These platforms help startup or small business to meet their funding requirements. तो ये जो तरीका है क्राउड फंडिंग का, ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है, बिकॉज मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स दोज हु गेट्स देयर सैलरी इन सरप्लस, दे ऑलवेज रेडी टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड गेट द इंटरेस्ट रिटर्न बैक. Third type of ways through which the fund gets by startup companies, that is angel investment. So angel investors are individual with surplus cash who have any interest to invest in upcoming startups. They also offer monitoring or advice alongside capital. तो जो angel investors होते हैं ये ऐसे individual surplus cash holders होते हैं जो किसी स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं और एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं. फोर्थ, वेंचर कैपिटल. सो देयर आर प्रोफेशनली मैनेज फंड्स which are invested in companies that have huge potential. Venture capitalists provide expertise and mentorship, evaluate business from sustainability and scalability point of view. तो वेंचर कैपिटल कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, आपस में मिल करके प्रोफेशनली इसमें मैनेज किया जाता है फंड को, ताकि किसी एक कंपनी को एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड किया जाए, उसको टाइम टू टाइम चेक किया जाए, उसको सस्टेन रखने के लिए, ठीक है. फिफ्थ, बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एसिलेटर्स, देन माइक्रो फाइनेंस एंड NFBC. ओके, सो बिजनेस इंक्यूबेटर एसिलेटर में क्या है कि अर्ली स्टेज बिजनेस कैन कंसीडर इंक्यूबेटर एंड एसिलेटर प्रोग्राम्स एज अ फंडिंग ऑप्शन. दीज प्रोग्राम्स असिस्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप बिजनेस एवरी ईयर. तो छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. दीज टू आर जनरली यूज्ड इंटरचेंजेबली. हाउएवर इंक्यूबेटर इज लाइक अ पेरेंट who nourish the business, whereas accelerator helps to run out to take giant leaps in business. So incubator and accelerator contact the startup with monitor investors and follow startup using this platform. तो incubator तो बड़ी firms होती हैं जो कि accelerator type of company को, जो छोटी companies हैं उनको अपने हाथ में लेकर के उनको finance provide करती हैं, develop करने का मौका देती हैं, ठीक है. Then last, microfinance and NFBC. This is non-banking financial corporations. So microfinance is basically access to financial service to those who either do not have access to conventional banking service or have not qualified for a bank loan. तो ऐसी छोटी फर्म जो बैंक लोन गेट करने के लिए एबल नहीं होती, तो ऐसी छोटी फर्म्स के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के थ्रू बैंकिंग सर्विस विदाउट मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैंक, तो बैंक के विदाउट लीगल रिक्वायरमेंट के तहत उनको फंड प्रोवाइड किया जाता है. सो दीज आर द वेज थ्रू विच स्मॉल फर्म्स गेट फंड, और वी कैन से स्टार्टअप फर्म्स गेट्स फंड. So thank you and have a nice day. In next video I'll explain you intellectual property right.